पैसे नहीं है, चला दो साल से लॉकडाउन है। कोरोना महामारी ने हर तरफ हाहाकार मचाया। इसने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि लाखों लोगों की जीविका भी छीन ली। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए और महंगाई का जो स्तर है उस पर क्या कहना। आसनसोल में पेट्रोल 108 रुपए 13 पैसे पर लीटर पर बिका। इस शहर में दैनिक मजदूर जो रोजाना 300 रुपए की आमदनी करता है और घर चलाता है, उसके लिए अब 2 पहिए का इस्तेमाल कर अपने काम पर जाना मुश्किल हो गया है। वहीं महंगाई के सताए और प्रशासन से दबाए गए एक व्यक्ति ने आसनसोल साउथ थाने के समक्ष बखेड़ा खड़ा कर दिया। उसकी बाइक का चालान किया गया था। इस व्यक्ति का नाम गणेश है। गणेश का कहना है कि 2 सालों तक लॉकडाउन की वजह से रोजगार नहीं है, 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से जुट पा रहा है। तो ऐसे में गाड़ी के पेपर तैयार कैसे करे? ये सिर्फ गणेश की स्थिति नहीं है बल्कि ऐसे हजारों गणेश हैं जो लॉकडाउन और महंगाई की दोहरी मार की वजह से ऐसी स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उस पर से प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई जो अपनी जगह पर तो सही है, लेकिन जो लोग मुश्किल हालातों में जीवन यापन कर रहे हैं उनका क्या? আমার গাড়ি ধরেছে। কেন? আজ 2 বছর লকডাউন, খাবার বেশি নাই, খাবার কোন কাজের জন্য ধানবাদ গেছিলাম, এই সব গাড়ি ধরলে কেন? বলছে লাইসেন্স দাও, কাগজ দাও, সব ফেলেছে আমার। সব ফেল? হ্যাঁ, সব ফেলেছে। কোথা থেকে নেবো? খাইতে বেশি নেই তো কাগজ বানাবো কি করে? আমি সালা খাইতে বেশি, আমার 3টে ছেলে নিয়ে আমি খাইতে বেশি নেই, তো আমি কাগজটা বানাবো কোথা থেকে? বাপ ঘর থেকে? না চুরি করবো না ডাকাতি করবো? ঠিক আছে, আপনি কি নাম? शुक्रवार को फॉस्बेकी संगठन के व्यवसायियों ने आसनसोल नगर निगम के विकास और विकास से संबंधित प्लान को लेकर एक बैठक की। उन्होंने कहा था कि प्रशासन यदि शहर के विकास के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाती है तो वे लोग आंदोलन करेंगे। इस पर क्या कहा आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक अध्यक्ष अमरनाथ चैटर्जी ने, सुनिए। শুনুন, আন্দোলন করা ভালো, সঠিক পথে আন্দোলন যদি চলে সেই আন্দোলনের আমাদেরও সমর্থন থাকবে। তো ফুটপাত তো আজকে নতুন হয়নি, এই 6 মাস এই বোর্ড তৈরি হয়েছে, তো 6 মাসে তো আর নতুন করে ফুটপাতটা বসে যায়নি। আজকে 70-80 বছর ধরে ফুটপাতটা আসানসোল শহরে আছে। তো যারা আজকে বলছে আন্দোলনের কথা তাদের আমরা সাধুবাদ জানাই, কিন্তু আরও আগে থেকে করলে মনে হয় আরও ভালো হতো। তো আমরা চেষ্টা করব। আমরা পুজোর সময় আমরা ফুটপাতের ব্যাপারে আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম বলে আমরা কিন্তু ফুটপাতবাসীকে আমরা গাড়ি বের করেছিলাম কর্পোরেশন থেকে সতর্ক করার জন্য যে যারা বিক্রেতা রয়েছেন বা ফুটে বসে আছেন তারা আপনারা নিজের জায়গায় বসুন, পথচারীকে পথ খালি করে দিন যেন পথচারী পথ চলতে পারে। তো আমরা সেটার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেব। আর কয়েকদিনের মধ্যে ছট পুজো পেরিয়ে যাওয়ার পরে আমরা সেই ব্যাপারেও আমরা আজকের মিটিং আলোচনা করেছি। বলছি এই বিষয় নিয়ে একটা সমস্যা আর দেখা গেছে, যাদের হকার মার্কেটে দোকান দেওয়া আছে তারা ভাড়া লাগিয়ে আবার ওই জায়গায় বসে রয়েছে, তাদের নিয়ে কি আপনারা এখনো পর্যন্ত কিছু করেছেন? না, আমরা তো সেই সিদ্ধান্তটা নিতে পারিনি। আমরা যখন এই হকার মার্কেটটা তৈরি হয়েছিল তখন আমরা এর বিরোধিতা করেছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে হকার মার্কেটটা ওই জায়গায় ঠিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হচ্ছে না এবং সেই যা মতন মার্কেটগুলো তৈরি হয়নি, কিন্তু তখন তো আমাদের কথা শোনা হয়নি, তো মানুষ তখন আমাদের সমর্থনও করেনি। তো এখন যখন পরিস্থিতিটা খুব জটিল জায়গায় চলে এসছে তখন মানুষ যখন আমাদের আশীর্বাদ করেছে, তা আমরা এই জটিল জায়গা থেকে নিজেদের কিভাবে বের করব আমরা আগামী দিনে আমাদের নেতৃবৃন্দ, আমাদের যারা মেম্বার রয়েছে তারা, আমাদের আধিকারিক যারা রয়েছে তারা এবং আমাদের যিনি মন্ত্রী রয়েছেন পিডব্লিউডি রাজ্য সরকারের, তার সঙ্গে বসে আলোচনা করে আমরা একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাবো যেখানে মানুষ উপকৃত হবে, যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাইছে সেরকমভাবে হবে। দাদা, আমার বক্তব্য রয়েছে যে যারা দোকান হকার পেয়েছে আবার এসে ওখানেই হকারি করছে, না সেটা তো তাদের তো ছেড়ে দেওয়া উচিত, হয় দুটোর মধ্যে একটা জায়গায় বসা উচিত। কারণ আমরা তো ফুটপাতে স্থায়ীভাবে আর কাউকে বসতে দেবো না, আমাদের অস্থায়ীভাবেই বসতে হবে, যেটা নিয়ম, ফুটের যেটা নিয়ম সেটাই সেইভাবেই থাকতে হবে। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेप्री। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा।
If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. जामुड़िया थाना क्षेत्र के हिंदुस्तान ढाबा और एक्सप्रेसवे होटल के मालिक दिनेश प्रसाद ने संजीवनी होटल के मालिक अमरजीत सिंह पर आरोप लगाया है कि वे कोर्ट से स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी संजीवनी होटल के मालिक अमरजीत सिंह उनके जमीन प्लॉट नंबर 449 के ऊपर जबरन शनिवार की सुबह से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। दिनेश प्रसाद ने कहा है कि वे लोग होटल का व्यवसाय करते हैं, वहाँ उनकी 10 डिसिमल जमीन प्लॉट संख्या 449 में है, जबकि उनके बगल में प्लॉट नंबर 450 में अमरजीत सिंह की जमीन है। वे भी पुराने व्यवसायी हैं। 2012 से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। यहाँ अगल बगल में दूसरी भी जगह हमारी जमीन है, जहाँ पर भी ये लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर निर्माण कराने का कार्य कलकत्ता हाईकोर्ट ने दे दिया है, लेकिन वे लोग कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने स्थानीय विधायक हरेराम सिंह, मंत्री मलय घटक, पुलिस कमिश्नर एवं अन्य कई अधिकारियों को पत्र भी दिया है। हरेराम सिंह की मध्यस्थता में बैठक भी हुई है कि अमरजीत सिंह उनके जमीन पर किसी प्रकार का कब्जा कर निर्माण कार्य न करवाए, लेकिन उन्होंने बैठक में बात मानी। दिनेश प्रसाद का कहना है कि यथार्थ में अमरजीत सिंह ने अपने समुदाय के 200 लोगों को मिसगाइड करके मंगलवार को उनके जमीन प्लॉट संख्या 449 पर ले आए और जबरन निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। उनके गेट पर ताला लगा था, उसे भी तोड़ दिया। पुलिस को खबर करने पर पुलिस फोन नहीं उठा रही है। अब हम लोगों के पास कानून और मीडिया का ही सहारा है। हम शासन और पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, कानून ने जो आदेश दिया है उसे लागू किया जाए और हमारी जमीन से अवैध निर्माण को तोड़वा दिया जाए। दरअसल अमरजीत सिंह चाहते हैं कि वे लोग वहां जाकर उनके कार्य को रुकवा दें और अपने गुंडों के साथ मारपीट कर केस बनाएं, लेकिन हम लोग मारपीट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सीधे साधे व्यवसायी हैं। जबकि अमरजीत सिंह के साथ अवैध धंधों में लिप्त युवकों का दल है, जिसके बल पर वे लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। उनके सामने कोर्ट के आदेश की भी कोई मायने नहीं है। नेता, पुलिस सभी से वे ऊपर है। हम लोगों की उनके सामने क्या औकात है? हम लोग तो केवल कानून का ही सहारा ले सकते हैं। इसलिए हम लोग सोमवार को धारा 118 के तहत मामला दायर कराएंगे। बीघा में प्रॉपर्टी है, उसको 144 लगा हुआ है। उसका अमरजीत सिंह उनके जो व्यक्ति है, संजीवनी होटल का मालिक, वो जो है वो हमारा ज़मीन पे 144 को अपना वायलेशन कर रहा है और ज़बरदस्ती वो बनाया जा रहा है, जिसमें हम लोग कल जो है इस पर सोमवार को 188 अंडर सेक्शन 188 पर मामला करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा हाईकोर्ट का भी ऑर्डर हुआ है, जो हमारा दूसरा काम को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है, हमारा और जो अगल बगल जो प्रॉपर्टी है। तो किस लिए ऐसा, क्या वजह क्या है? कुछ नहीं, उनका इलीगल मैंने हड़पने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, कब्जा करने के चक्कर में। आपकी कितनी जगह है वहाँ पर? और 10 डिसमिल जगह था और भी जगह है अगल बगल में। प्लॉट नंबर आपका क्या है? प्लॉट नंबर है 449। किसके नाम से? दिनेश प्रसाद के नाम से। कौन सा मौजा कौन सा है? नीलाम। हुआ क्या? मामला क्या है? मामला कुछ नहीं, वो कब्जा करना चाह रहा है। कौन है वो? कौन हड़पना चाह रहा है? अमरजीत सिंह। क्या है वो? वहाँ उनका होटल है, संजीवनी होटल। अभी वो क्या कर रहे हैं? आप लोग बोले वो अभी वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो आपने पुलिस को जानकारी दी इसके लेकर? पुलिस फोन नहीं उठा रहा, बात नहीं कर रहा कोई। तो आप जाके जानकारी नहीं दे के आए? जाके नहीं गए आप? जाने नहीं दिया, जाने नहीं दे रहा ना पूरा चारों। करीब 150 से 200 मिस गाइड करके अपने कमेटी के लोगों को वहाँ बैठा के रखा है। उस काम को भी डिस्टर्ब उस काम को भी, अदर प्लॉट को भी डिस्टर्ब किया जा रहा है मिस गाइड करके कि ये 449 में एम जंक्शन हम ही लोगों ने लगाया है। तो वो उनका कहना है कि यहाँ डिस्प्यूट चल रहा है, ये काम किसी दूसरे प्लॉट में भी हमारा हो रहा है, तो उसको भी वो 449 साबित करने की कोशिश करके उसको भी काम को बंद करवाना है। कई बार वो मिसगाइड करके बंद भी करवाया गया है, लेकिन थाना प्लस कुछ वहाँ का लोकल नेता इन्वॉल्व होकर वो चीज़ को क्लियर, माफी द्वारा वो चीज़ को क्लियर कर दिया गया। उसके बाद भी वो किसी तरह से वो मानने को तैयार नहीं है। आज अचानक 150 से 200 वो कमेटी के मिस गाइड करके, हम जानते हैं कमेटी वाला लोग, कोई वहाँ बहुत सा भी कमेटी होटल है, सब जानता है सही कौन है गलत है। हम डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और कानून के ऊपर भरोसा करके हम लड़ाई कर रहे हैं। 2012 से लड़ाई कर रहे हैं। वो आज वो मसल पावर दिखला के गलत हिसाब से वहाँ हमारा
गेट बंद था, ताला तोड़ के। अभी भी आपका लोकल वहाँ जो भी है न्यूज़ लेते हैं, अभी भी काम चालू है, वो लोग कर रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हम लोग आके वहाँ मना करें, जिससे वो लोग मारपीट करके एक केस दायर करके हम लोग को फंसाने का, झूठा मामला फंसाने का ये लोग षड्यंत्र में है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस को हम लोगों ने फ़ोन कर रहे हैं, हमारा भतीजा मोहन प्रसाद फ़ोन कर रहा है, लेकिन पुलिस कभी मोबाइल बिजी आ रहा है, कभी किसी कारण से वो लोग नहीं उठा रहे। प्लस हमारा कोई भी आदमी पुलिस थाना जाने के लिए चेष्टा कर रहा है, रास्ते में उन लोग को ब्लॉक कर दिया गया है, चारों तरफ लटा बिछा करके गाली गलौज करके भगा दिया जा रहा है। तो वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि हम लोग सामने फ्रंट पर आए, ताकि हम लोग हाथापाई करें, मारपीट, एक केस बनाए। तो आप डायरेक्ट कमिश्नर को क्यों नहीं बोल रहे हैं? जी, डायरेक्ट कमिश्नर को क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम लोग सोमवार को एक मामला कर रहे हैं। कमिश्नर को हम लोग इसलिए नहीं बोले कि वहाँ पर ही, और कमिश्नर का ऑलरेडी हम लोग कमिश्नर साहब को, मलय घटक साहब को, वहाँ के हरी जो भी जमुरिया के MLA साहब, उनको, कारपोरेशन को, सभी को हम लोगों ने लेटर दिया हुआ है। और आज लेटर में बोलिएगा तो आपको लेटर का भी कॉपी हम आप लोग को जेरॉक्स करके दे देंगे। सभी के नॉलेज में है, लेटर दिया, लेकिन हम लोग कानून का सहारा चल रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा, उनका चीज़ है भाई, उनको मिलना चाहिए। हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा चीज़ है, हमको मिलेगा। लेकिन वो जानते हैं कि उनका चीज़ नहीं है। वहीं दूसरी ओर संजीवनी होटल के मालिक अमरजीत सिंह ने कहा कि दिनेश प्रसाद के द्वारा लगाया गया आरोप निराधार है। प्लॉट संख्या 450, 449, 448 मेरे नाम से है। प्लॉट संख्या 449 में जितनी जमीन दिनेश प्रसाद की है, उतनी जमीन में दीवार वे कर चुके हैं, बल्कि 6 महीने पहले से वो हमारी जमीन में बाउंड्री दिए हुए हैं। इसका मेरे पास पेपर भी है। यदि ये कह रहे हैं कि वो जमीन उनकी है, तो इसका पर्चा और दाखिल खारिज कागज दिखाएं। 449 नंबर प्लॉट में और भी जमीन है, और भी लोग हो सकते हैं। 3 महीने पहले मैंने ये जमीन खरीदा है। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि आज हिंदुस्तान ढाबा और एक्सप्रेसवे के जो मालिक हैं होटल के, दिनेश प्रसाद जी, उन्होंने एक आपके ऊपर संगीन आरोप लगाया है कि उनका प्लॉट जमीन संख्या 449 पर आप जिस पर की स्टे लगा हुआ है, इसके बारे में आपको जानकारी है, इसके बावजूद भी आप जबरन उस पर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? हमारा 449 445 में जगह है, 5450 में, जो कि एक खुद 6 महीना से हमारा जगह पीछे में छेक लिया गया है, दीवार किया है, जो कोर्ट से ऑर्डर है 6 साल से। इसका इंक्वायरी कर लिए, आप लोग देखिए कितना के काम किया, हम दिखला देंगे आपको। ये भी किया, हम तो एक रोज किया है, तो 6 महीना से इसका बंद लगा हुआ, 144 भी लगा हुआ है। जमुरिया से अपना कारपोरेशन से भी इसका एक ऑर्डर है काम बंद करने का, जो कि हमारे पास कॉपी है। आपका यही कहना है कि वे आपका जो जमीन संख्या, प्लॉट संख्या 450 पर वे अवैध कब्जा 6 महीने पर। 449 हमारा है जगह, आपका 449 है? हाँ, हमारे अंडर में है। 450 भी है, उसमें साथ में 449 भी है, 2155 भी है। तो वे बोल रहे हैं कि 449 का है ना, तो वे तो 449 दिखा रहे हैं कि मेरा है। हाँ, तो 44 इसका नहीं है, तो हम आपको दे देंगे। अभी तो हमारा 3 महीना हुआ लिया को, तो इसका जगह नहीं है, और इसका अकेले का कोई प्लॉट नहीं है। प्लॉट तो सब बहुत आदमी है उसमें नाम, इसका अकेले का कैसे हो जाएगा? इसका अकेले का नहीं है। ये बोल रहे हैं कि 449 में 10 डिसमिल जगह मेरा है, उस 10 डिसमिल पर आप निर्माण कार्य करवा रहे हैं। वो झूठ बोलने में उसको क्या लगता है?